میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہ ایک حکیم کا گھر تھا۔ میرا باپ پیشہ وارانہ حکیم تھا۔ وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا اور خاص کر کے بانجھ عورتوں کا علاج کرتا تھا۔ میرے باپ نے بہت چھوٹا سا اپنا ہجرہ بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہ بہت سے مریض آتے تھے اور اپنا مرض بتا کر علاج کروا کر چلے جاتے تھے۔ میں جب سے پیدا ہوئی تھی میں اپنے باپ کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں جب چھوٹی تھی تب تو مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی چلی گئی مجھے ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا چلا گیا۔ اس ہجرے کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا گیا تھا جس کے آس پاس بہت سی جڑی بوٹیاں لٹکی ہوئی تھی۔ میرے باپ کا کہنا تھا کہ جو بھی عورت اس میں سے گزرتی ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوتا بھی تھا کہ جو بھی عورت اس دروازے میں سے گزرتی تھی وہ حاملہ ہو جاتی تھی۔ اور کچھ عرصے بعد ہی میرے باپ کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ کر ان کو شکریہ ادا کرتی تھی۔ میں جب چھوٹی تھی مجھے ان ساری باتوں کی سمجھ بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ ساری چیزیں میرے سر سے گزر جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے میرا خط نکلتا گیا مجھے سب سمجھ آتا گیا۔ پہلے پہل تو مجھے یہ سب کچھ ایک ڈھونگ لگتا تھا، لیکن جب میں نے ساری چیزوں کو غور کیا تو واقعی یہ بات حقیقت تھی۔ عورتیں میرے باپ کے پاس روتے گڑ گڑاتے ہوئے آتی تھی کہ ان کو اولاد جیسی نعمت حاصل نہیں ہو رہی ہے، اور جیسے ہی میرا باپ ان کو اس دروازے سے گزارتا تھا تو وہ عورتیں حاملہ ہو جاتی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ دھیرے دھیرے میرے دل میں یہ تجسس پیدا ہونا شروع ہو گیا، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ حقیقت میں مجھے یہ سب کچھ ایک ڈھونگ ہی لگتا تھا۔ میرا باپ اس کام کے پیسے لیتا تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ ابا ان سب عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور پیسہ لوٹتے ہیں، لیکن میری یہ خام خیالی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے بہت دفعہ ایسے کیس آ چکے تھے جو کئی برس سے بے اولاد تھے، لیکن جیسے ہی وہ دروازے سے گزرے ان کے یہاں اولاد پیدا ہو گئی۔ ایک روز میرے ابا اپنے کسی کام سے میری اماں کے ساتھ بازار گئے ہوئے تھے۔ وہ دور دراز سے جا کر جڑی بوٹیاں لے کر آتے تھے، اور جو بھی لوگ اپنا مرض بتاتے تھے ان کو دے کر ان سے اپنا معاوضہ حاصل کرتے تھے۔ گھر کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے بہن بھائی بھی باہر کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ میں غور سے اس دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگوں کو دروازے کے پاس جانے سے روکا ہوا تھا کیونکہ ہم لوگ کنوارے تھے، اور کنوارے بچوں کو اس دروازے کے قریب بھی جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ میرے ابا ویسے تو اس ہجرے کو بند کر کے جاتے تھے جب بھی وہ باہر کہیں کسی کام سے جاتے تھے، لیکن آج اتفاقی طور پر وہ اپنے ہجرے کو بند کرنا بھول گئے تھے اور اس کا دروازہ ویسے کا ویسا ہی کھلا ہوا تھا۔ میں کئی بار اس دروازے کے پاس آ گئی تھی، لیکن خوفزدہ ہو کر واپس لوٹ جاتی تھی، کہیں ابا نہ آ جائیں۔ مجھے اسی بات کا ڈر رہتا تھا، لیکن تجسس اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ میں اپنے اس ڈر کو قابو ہی نہیں کر پائی تھی۔ میں ایک دفعہ اپنے گھر کے دروازے کے پاس آئی اور سر نکال کر گلی میں جھانکا۔ بچے اپنے آپ میں مگن کھیل رہے تھے۔ میرے ماں باپ کی کہیں بھی دور دور تک مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں اب اپنے ابا کے ہجرے کے پاس آ گئی تھی۔ گھر کا دروازہ بھی میں نے اچھے سے اندر سے بند کر لیا تھا۔ ہجرے کے اندر جیسے ہی میں نے قدم رکھا میرے دل کی دھڑکنیں بہت منتشر ہو رہی تھی۔ مجھے اس چیز کو کرتے ہوئے خوف بھی آ رہا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کیا واقعی اس دروازے کے اندر کوئی کرامت ہے جس کی وجہ سے عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے میں یہ ساری چیزیں بھول چکی تھی کہ میں بھی ایک لڑکی ہوں، اور بلکہ میں تو ایک کنواری لڑکی ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ایک بار پھر مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا، وہ ویسے کا ویسا ہی بند تھا۔ میں قدم با قدم چلتی ہوئی میں اس ہجرے میں موجود اس چھوٹے سے دروازے کے پاس سے آ گئی تھی جہاں سے وہ عورتیں گزرتی تھی جن کی اولاد نہیں ہوتی۔ میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بہت بری طریقے سے کانپ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے جسم سے جان نکلنے کے در پر آ گئی ہو، لیکن میں آج یہ ہر حال میں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور ایک قدم اس دروازے کے اس پار رکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اس دروازے سے نکل گئی۔ یہ کرتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آیا تھا۔ میں خواہ ہی اتنا ڈر رہی تھی، حالانکہ اس میں تو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ میں ایک بار پھر اس دروازے سے گزر گئی۔ میں نے یہ عمل کئی بار کیا، اور جب میں تھک گئی تو اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں جس چیز سے اتنا ڈرتی تھی، میرے ماں باپ جس چیز کے لیے مجھے روکتے تھے، میں تو وہ کر آئی ہوں، لیکن مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا جس سے مجھے معلوم ہو سکے کہ میں حاملہ ہو رہی ہوں۔ میں نے اپنے باپ کے ڈھونگ پر یہ خیخکا لگایا اور آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ میری آنکھ تقریب رات کے وقت کھلی تھی
घर में हलचल हो रही थी, यानी अम्मा अब्बा का घर आ चुके थे। मैं अपनी जगह से उठी और अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ी हो गई। वो रात का खाना बना रही थी। वो मुझसे दिन के बारे में पूछने लगी कि तुम क्या करती रही हो। मैं जब आई थी तुम सो रही थी। मैंने ज़्यादा इनको इस बात का कुछ नहीं बताया, बस इधर उधर का बताकर वापस अपने कमरे में आ गई। रात अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुकी थी। सुबह होते ही मुझे अपना पेट भरपा हुआ महसूस हुआ। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा तो मुझे दर्द भी महसूस हो रहा था। मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और खाना खाने के लिए चली गई। यह मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ था कि मुझे अपना पेट भरा हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। कल क्या हुआ अपने जहन से मैं बिल्कुल ही निकाल चुकी थी। मुझे कल का कोई वाक़या भी याद नहीं था। मेरी माँ ने मेरे आगे नाश्ता रखा तो मैं इनके साथ ही बैठकर नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर बाद ही हमारे स्कूल का वक्त हो गया था और हम लोग स्कूल जा चुके थे। मैं 10वीं जमात के तालिबे इल्म थी। मैं पढ़ने में अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छी थी। मेरे मुकाबले का मेरी क्लास में कोई भी नहीं था। मुझे इस बात का बहुत घमंड था। मेरे नईन ने भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे माँ बाप इस चीज़ को लेकर मुझ पर फख्र करते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इनकी बेटी क्या गुल खिला चुकी है। मैं घर आ चुकी थी, लेकिन मुझे अपनी हालत बहुत निढाल निढाल मालूम हो रही थी। मेरी माँ ने भी मुझसे कई बार पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैं इन्हें कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस सोए सोए जा रही थी। मेरी माँ यही समझी शायद मैं स्कूल जाने की वजह से थक चुकी हूँ। इसी वजह से उन्होंने मुझे खाना वगैरह खिलाया और मैं वहीं पर सो गई। रात के वक्त मेरी आँख खुली तो मुझे आज फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पेट बढ़ रहा हो। मुझे अब डर लग रहा था। मेरे दिमाग में अब सब चीज़ें आ रही थी। कल मेरा इस दरवाजे के पास से गुजरना और बार बार वही अमल दोहराना अब मुझे डरा रहा था। कहीं मैं भी तो हामिला नहीं हो गई हूँ। अगर अब्बा या अम्मा को इस बारे में मालूम हुआ तो मेरी खैर नहीं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो, वरना मेरे माँ बाप मुझे किसी सूरत नहीं बख्शेंगे। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। मैं अभी इन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी कि अचानक ही मुझे खैसे आ गई। मैं फ़ौरन ही बाथरूम के अंदर भागी। मुझे बहुत बड़ी उल्टी हुई थी। मेरी माँ फ़ौरन ही बाथरूम के अंदर आकर मेरी पेट सहलाने लगी और कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? सुबह से तुम्हारी क्या हालत हो रही है? सब खैर तो है? क्या खा लिया था तुमने? इनको यही लगा था कि मैं कुछ उल्टा सीधा खाकर घर आई हूँ, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इनकी बेटी क्या कर चुकी है। मेरा दिल खौफ के मारे बंद होने के करीब आ गया था। मेरे अब्बा को उन्होंने सारी रवादात सुना दी। उन्होंने मुझे अपने हिजरे में बुलाया और मुझे ये 2 पूड़ियाँ देकर कहा कि इसे फांक लो, तुम ठीक हो जाओगी। मैंने फ़ौरन ही वो पूड़ियाँ फांक ली और मैं जाकर सो गई। सुबह उठते ही मुझे अपने पूरे जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं अपने बिस्तर से खड़ी हुई, मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और एकदम ही मुझे एक बार फिर खैसी आ गई और मैं फ़ौरन ही बाथरूम के अंदर भागी। मुझे एक बार फिर बहुत बड़ी उल्टी हुई थी। मेरा दिल खौफ के मारे बंद होने के करीब हो गया था। मेरा दिमाग में वही बातें आ रही थी जो मैं सोचना नहीं चाहती थी। मेरे कजिन जिसकी शादी मेरे बराबर वाले घर में हुई थी, जब वो माँ बनने वाली थी तो इसके साथ भी यही सब कुछ होता था। यही सब सोचकर मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से घबरा रहा था। मैं अपनी माँ के पास बैठ गई और वो मुझे मेरे बाप की दी हुई पुड़िया देने लगी कि इसे खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन मैंने वो पुड़िया अपनी माँ के हाथ से लेकर साइड पर रख दी। मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। मुझे हर हाल में अपनी माँ को अपनी इस हरकत के बारे में बताना था, क्योंकि ये वही थी जिसे मैं अपने दिल का हर हाल बयान कर लेती थी। अगर मैं इनको इस बारे में नहीं बताती तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती थी। मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। अगर मैं हामिला हो चुकी थी तो मेरा बाप कुछ करके मुझे ठीक कर सकता था, लेकिन अगर मैं इस बात को छुपाती तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता और सब चीज़ें बिगड़ जानी थी। मेरा दिमाग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में उलझा हुआ था। मेरी माँ मुझे बहुत गौर से देख रही थी। वो मुझे देखते हुए कहने लगी, शायदा बेटा सब ठीक तो है, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो? ज़रा सी उल्टी ही हुई है, इतना ज़्यादा इस बारे में ना सोचो, बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और फिलहाल के लिए आराम करो। वो मुझे प्यार से समझाते हुए कहने लगी। मैंने इनका हाथ थामा और इनके हाथ पर निगाहें मरकूज करते हुए कहने लगी, अम्मा कल दोपहर के वक्त जब आप और अब्बा जड़ी बूटियाँ लेने के लिए बाजार गए हुए थे तो मैं आप लोगों के पीछे से अब्बा के हिजरे में गई थी। इत्तेफाक से कल अब्बा अपना हिजरा बंद करना भूल चुके थे, इसी वजह से इसमें दाखिल हो गई थी।
अम्मा मैं जानती हूँ मैंने ये काम गलत किया है, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन तजस्सुस के हाथों में मजबूर हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं ये काम करना मुझे ठीक लगा। हिजरे में जो अब्बा का दरवाज़ा मौजूद है, जिसमें से जो भी औरत गुजरती है वो हामिला हो जाती है। यही सब कुछ सोचकर मुझे ऐसा लगता था जैसे अब्बा कोई ढोंग रचा रहे हों और पैसे इन औरतों से लूटते हों। यही चीज़ साबित करने के लिए मैं इस दरवाजे में से गुजर गई थी। कल ये अमल मैंने बार बार किया था और ये करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया था। ये करने के बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गई थी और रात के वक्त जब मैं उठी तो मुझे अपना पेट बड़ा हुआ महसूस हो रहा था। मेरी माँ आंखें फाड़े मेरी बातें सुन रही थी। मैं जानती थी कि इनका एक जनाटेदार थप्पड़ मैं खाने वाली हूँ, इसीलिए मैं खुद को तैयार करके बैठी हुई थी। मैं मजीद बोली, अम्मा इसके बाद से ही मुझे उल्टी पर उल्टी हो रही है और चक्कर आ रहे हैं, जिस्म भी निढाल निढाल सा हो रहा है, कहीं मैं हामिला तो नहीं हो गई। मेरी ये बात सुनते ही मेरी माँ परेशान से मुझे देखते हुए कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें किसने कहा था तुम्हारे अब्बा के हिजरे के अंदर जाने का? जब सबको ही इस दरवाजे के पास जाने के लिए मना किया गया है तो तुम क्यों गई? खुदा ना करे तुम्हारे साथ ये हो गया हो। मेरी माँ बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो अपनी जगह से उठी और फौरन ही मेरे बाप के हिजरे में जा चुकी थी। मैं नहीं जानती थी इसके बाद क्या हुआ। मैं अपने कमरे में जाकर ज़ारो खता रोने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू भल भल बहने लगे थे। मैं जाए नमाज पर बैठी अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि जो भी मैं सोच रही हूँ और जो कैफियत मेरी हो रही है वो हामिला वाली ना हो, मुझे कुछ ना हुआ हो। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और मेरे अम्मा अब्बा कमरे में दाखिल हुए थे। मैं जानती थी अब मेरी बहुत बुरी तरीके से क्लास लगने वाली है। जैसे ही अब्बा कमरे के अंदर दाखिल हुए, मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और रोते हुए कहने लगी, प्लीज़ अब्बा मुझे माफ़ कर दें, मैं ये काम नहीं करना चाहती थी। बस तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने ये काम कर लिया था। अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। बस मुझे ठीक कर दें, मुझे माफ़ कर दें। मैं ज़ारो खता रोते हुए एक ही बात की गर्दान किए जा रही थी। मेरे बाप ने चंद पल मुझे घूर कर देखा और कहने लगे, मना किया था ना मैंने तुम्हें इस दरवाजे के पास जाने से, लेकिन तुम बाज ना आई। देखा हो गया ना वो मसला। अब मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? इनकी आवाज़ में ये कराहट थी। मेरा रोम रोम काँप रहा था। मैं समझ चुकी थी कि मैं हामिला हो चुकी हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। वो मजीद कुछ कहते मैं एकदम ही चक्कर खाकर बेहोश हो चुकी थी। मेरे माँ बाप एकदम ही हड़बड़ा गए थे और फौरन ही मेरे अब्बा मुझे उठाकर हॉस्पिटल लेकर भागे थे। तकरीबन मेरी आंख रात के आधे पहर के वक्त खुली थी। मैंने खुद को हॉस्पिटल के कमरे में पाया था। मैंने नज़र घुमा कर देखा तो सोफे के ऊपर सोई जागी कैफियत के अंदर मेरा बाप और मेरी माँ बैठे हुए थे। एकदम ही मैं खौफ के ज़ेरे असर उठकर बैठ गई थी। उठकर बैठने से मुझे अपने पेट के अंदर एक ठेस सी उठी हुई महसूस हुई थी। मेरे उठने से कमरे में एक शोर सा उठा था। इस आवाज़ से मेरे माँ बाप फौरन ही जाग गए थे। मेरी माँ मेरे करीब आते हुए मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी, तुम ठीक तो हो ना? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? इनके लहजे में ममता की फिक्र थी। मैंने सर नफ़ी में हिलाया और इनसे पूछने लगी कि अम्मी मुझे क्या हुआ है, क्या मैं हामिला हो गई थी? मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो कमरे से बाहर चली गई। मेरा दिल कट के रह गया था। यानी जो हरकत मैं कर चुकी थी इसका खमियाजा भुगतने का वक्त आ चुका था। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की बात की नफ़ी नहीं करनी चाहिए, इनकी बातों को मजाक समझकर भूल नहीं जाना चाहिए, इनकी हर नसीहत पर अमल करना चाहिए। मैंने निगाहें घुमाकर अपने बाप की जानिब देखा तो इनकी आंखों में भी आंसू थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरा अब क्या होगा। मैं वापस से निढाल होकर बिस्तर पर ढह सी गई थी। सुबह होने के बाद मेरे माँ बाप मुझे घर ले आए थे। मेरी माँ ने सिक्के मुझसे कोई बात नहीं की थी और यही चीज़ मुझे खौफ ज़्यादा कर रही थी। मैं अब यही सोच रही थी कि मेरे साथ अब क्या होगा। मेरे दिमाग में अजीब अजीब सा ख्याल आ रहे थे। दिल खौफ के मारे बंद होने के करीब हो गया था। मैंने स्कूल जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरे माँ बाप मुझसे बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे थे। मुल्क थे बस मेरी तबीयत के बारे में पूछते थे और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, लेकिन मुझसे मेरी हालत के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। मैं अपनी माँ से बार बार ये सवाल करती थी कि अम्मा मैं हामिला हूँ, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं देते थे। बस इनके आंखों में आंसू आ जाते थे और वो इस जगह से चली जाती थी। मेरा पेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मेरे चेहरे पर भी अजीब अजीब से निशानात आ रहे थे।
मुझे दिन में कई बार उल्टी होती थी। मैं अपने माँ बाप से और अपने हालात से अब बेजार हो चुकी थी। मैं अब एक जगह ही पड़ी रहती थी। मेरे बाप ने अपना हिजरा बंद कर दिया था। वो दरवाज़ा भी उन्होंने हटा दिया था और एक परचून की दुकान खोलकर वहाँ काम करना शुरू कर चुके थे। मैं समझ गई थी कि मेरी हालात की वजह से उन्होंने ये सब कुछ बंद कर दिया है, लेकिन मैं असल हकीकत से तो नावाकिफ थी। एक रोज़ मेरी माँ मेरी तबीयत खराबी की वजह से मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। डॉक्टर ने मेरा इलाज करके जा चुकी थी। मुझे इस वक्त बिल्कुल होश नहीं होता था। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और साइड पर ही मेरे माँ डॉक्टर से मेरी तबीयत के बारे में दरियाफ्त कर रही थी। अचानक ही मेरी आंख खुल गई थी और मैं बिल्कुल ऐसे ही लेटी रही जैसे मैं अभी तक बेहोश हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ की हर बात को सुन सकती थी। मेरी माँ मेरे पास खड़ी हुई थी। डॉक्टर इनसे कहने लगे, आपकी बेटी की तबीयत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके पास अब इतना वक्त नहीं बचा है। इसका ख्याल आप लोगों को बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हालत बहुत नासाज होगी। इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कुछ होना इसके लिए किसी खतरे से खाली नहीं है। मैं समझ चुकी थी कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू के खतरे बहने लगे थे, लेकिन इनके अगले जुमले से मेरी सांस तक रुक गई थी, क्योंकि वो ये नहीं बोल रहे थे कि मैं हामिला हूँ, बल्कि मेरी माँ को वो ये बता रहे थे कि आपकी बेटी के पेट में रसूली है जो बढ़ती चली जा रही है और इसकी जान को अब बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है। ये बात सुनते ही मैंने पेट से आंखें खोली थी और अपनी माँ को देखते हुए कहने लगी थी, अम्मा, यानी मैं हामिला नहीं हूँ। मैं जानती थी कि रसूली की बीमारी क्या होती है, लेकिन यह खबर मेरे लिए किसी खुशी से कम नहीं थी कि मैं हामिला नहीं हूँ। मेरी आवाज़ खुशी से लबरेज थी। मेरी माँ भी एकदम होश में आ गई। डॉक्टर भी मेरी ये बात सुनकर हैरत से मुझे देखने लगी थी। मैंने डॉक्टर साहिबा की जानिब देखते हुए भी यही सवाल दोहराया था, क्या वाकई मैं हामिला नहीं हूँ? डॉक्टर मुझे अजीब से निगाहों से देख रहे थे कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो कहने लगे, कैसी बातें कर रही हो? शायद अब बेटा तुम हामिला क्यों होगी? मैं कुछ कहती, लेकिन इससे पहले ही मेरी माँ ने मेरी बात को गोल मोल कर दिया और डॉक्टर को बाहर भेजकर मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, तुम्हारे बाप इन औरतों को इस दरवाजे से गुजारने के बाद एक दवाई देते थे, जिसको खाकर वो औरतें हामिला होती थी और इस दरवाजे से गुजरकर ही हामिला नहीं हो जाती थी। तुमने सिर्फ और सिर्फ वो मरहला देखा था जब औरतें इस दरवाजे से गुजरती थी, लेकिन तुमने वो जड़ी बूटियां अपने बाप को देते हुए नहीं देखी थी जो वो इन औरतों को देते थे। तुम्हारे बाप के हाथ में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक शफा रखी है। जो भी औरत इनसे वो जड़ी बूटियां लेती थी और इस दरवाजे से गुजरती थी तो वो हामिला हो जाती थी। सिर्फ इस दरवाजे से गुजरने से ही कोई औरत हामिला नहीं हुई थी। तुम्हें यह मर्ज बचपन से था, लेकिन तुम्हारा यह मर्ज तुम्हारी जवानी में उभरा है। तुम्हारी तबीयत कुछ दिनों पहले से ही खराब थी, लेकिन इस दिन के बाद से तुम्हारी तबीयत बहुत नासाज हो गई थी। इत्तेफाकी तौर पर जिस दिन तुमने यह अमल किया था, इसके बाद से ही तुम्हारी ये बीमारी हम सब पर वाज़ा हुई थी। जबकि ये बातें सुनकर मेरी आंखें खुशी से चमक रही थी। मैं जानती थी कि रसूली की बीमारी बहुत ख़राब होती है, इसके अंदर इंसान की मौत भी हो जाती है, लेकिन मेरे लिए ये बात किसी खुशी से कम नहीं थी कि मैं हामिला नहीं हूँ। मैंने खुशी के आलिम में अपनी माँ को गले से लगा लिया था और इनको खुश होते हुए बोली थी, अम्मा, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला मुझे ठीक कर देंगे। बस मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मैं हामिला नहीं हूँ। मैं आपसे यही सवाल तो बार बार पूछती थी, आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? आप नहीं जानती कि मैं किस कदर परेशान थी, जबकि मेरी माँ मुझे आंसू भरी आंखों से देखते हुए ही कमरे से जा चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रही है। शायद मेरी बीमारी की वजह से वो बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं खुशी खुशी घर वापस आ चुकी थी। मैंने घर आने के बाद अपने बाप को भी इसी खुशी के साथ ये खबर भी दी थी, जबकि मेरा बाप भी मेरी खुशी में मुस्कुरा दिया था, लेकिन इनकी आंखों में भी वाज़ा नमी थी। मैंने इन लोगों को किसी चीज़ पर भी तवज्जो नहीं दी थी। कमरे में आने के बाद मैंने जाए नमाज बिछाई थी और अल्लाह के हजूर सजदा रेज होकर इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि अगर वाकई में इस दरवाजे से गुजरने के बाद हामिला हो जाती तो मेरी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद होने में कोई कसर नहीं रहती। सब लोग मेरे किरदार पर भी थू थू करते हैं, मुझे बुरा भला कहा जाता। मैं इस बच्चे की पैदाइश कैसे करती जो इस दुनिया में आता? यही सब सोच सोच कर मेरे हालत मज़ीद ख़राब हुई थी। मुझे अपने माँ बाप की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया कि मैं हामिला नहीं हूँ, बल्कि मेरे पेट में रसूली है। मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की थी। बस इस रात मैं खुशी खुशी सो चुकी थी। सुबह में जब जागी तो मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई थी। मुझे एकदम ही उल्टी सी आई थी और इस उल्टी में मुझे खून भी आ रहा था।
मेरी माँ ज़्यादा खतर रो रही थी, इसकी आंखों में भल भल आंसू बह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मैं खुश थी। मेरी माँ रात होते ही मेरे बाप के साथ मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी और ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहिबा को बताई थी। उन्होंने चंद एक हिदायत की थी और मुझे ड्रिप लगाकर घर वापस भेज दिया था। मेरी तबीयत दिन ब दिन निढाल होती जा रही थी। डॉक्टर ने मेरी रसोली का ऑपरेशन बताया था, लेकिन मेरे माँ बाप ये करवाते हुए डर रहे थे। डॉक्टर का कहना था अगर हमने ये ऑपरेशन नहीं करवाया तो बहुत जल्द ही मैं इस दुनिया फानी से कूच कर जाऊंगी। मैं बिल्कुल न डर थी। मैंने अपने माँ बाप को बिल्कुल हंसते हुए कहा था कि मैं ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हूँ। मेरा बाप मेरी बहादुरी देखते हुए मुझ पर फख्र कर रहे थे, लेकिन मेरी माँ की आंखों से वो नमी जा ही नहीं रही थी। मैं बहुत ज़्यादा इनकी इस नमी को देखकर परेशान हो रही थी। ना जाने इन्हें क्या हो गया था। वो वक्त भी आ चुका था जब मेरा ऑपरेशन का दिन आ गया था। मेरी माँ ने मासूम बच्चों को खाना खिलाया था। मेरे बाप ने फ़कीरों में पैसे दान किए थे। मेरे बहन भाई मेरी ज़िंदगी की दुआ किए थे। मुझे हॉस्पिटल के इस कमरे में ले जाया जा चुका था जहाँ पर मेरा ऑपरेशन था। यह ऑपरेशन तकरीबन 4 घंटे चला था। मेरे माँ बाप के हालात में बताने से कासिर हूँ। मेरा ऑपरेशन डॉक्टर ने बहुत सलीके से किया था, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई थी और मैं दुनिया की तरफ लौट आई थी। शायद मेरी माँ की और मेरे बाप की दुआएं मुझे वापस ले आई थी, वरना रसूली का ऑपरेशन के वक्त लोग बहुत मुश्किल से ही बच पाते हैं। मेरी जब आँख खुली तो मेरे बहुत से रिश्तेदार मेरे आसपास खड़े हुए थे। मेरी माँ मेरे सरहाने ही खड़ी हुई कुछ आयतें पढ़कर मेरे सर पर फूंक रही थी। मैंने खुद को सेहतयाब देखा तो बेसाख्ता सर उठाकर अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा किया था और अपनी इस बेवकूफ़ाना हरकत पर हल्का सा हंसकर खुद को माँ बाप की हुई नसीहतों पर चलने पर आमदा कर लिया था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।